So firstly, welcome to our channel, Farhan, and very big congratulations for your song "Jab Dil Mile." It's amazing, and the response is also amazing. So, what kind of feedback you got till now related to your song? थैंक यू सो मच एंड सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक. Very good response, excellent. I was expecting uh, little much, but इतना ज़्यादा I was not expecting. बहुत अच्छा response आ रहा है and I'm very happy for it. Okay. So ये रिक्रिएशन का आपके दिमाग में कब से आया कि किस तरह से आइडिया आया इस सॉन्ग का? Ideas तो काफी आते रहते हैं, but this one was of course it's uh, both of them, Ramta Jogi and Jab Dil Mile, both are the iconic songs of Bollywood. Idea came in my mind because I based in Saudi, so I really love like Middle Eastern instruments. तो मुझे idea आया कि these songs are on chromatic scales. So मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं दोनों को मिला दूंगा, क्योंकि कोई भी म्यूजिशियन अगर इन दो गानों को करने का सोचेगा तो थोड़ा सा डरेगा, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग्स. पर वी अचीव्ड इट एंड विद द हेल्प ऑफ आतिफ अली, द कंपोजर जिसने म्यूजिक दिया है, एंड ऑफ कोर्स विद सम ऑफ musicians, Turkish players. We played tarbuka in this one. We played Turkish sitar and a lot of Middle Eastern instrument into it. So it just created by the wonderful team. Yeah. So location is also wonderful. उसके बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरह से शूटिंग की और क्या कुछ बताना चाहेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में? Actually, yeah, when we जब हमने गाना complete किया, I shared with Mr. Kumar Turani, and he absolutely loved it, and he gave me that opportunity to do that song. And then we thought कि हमें इसको, अगर हमने इतना इसको Middle Eastern बनाया है, so we should give the same vibe to the video also, क्योंकि imagine कि we did it in a very fancy place. It won't go with the feel, with the vibe. So we thought of the idea of Dubai and other Middle East places, but then the organic and real historical place is Saudi Arabia actually, and यहीं पे मैं रहता हूँ. So I also really feel proud that this is the first music video, the Bollywood music video shot in Saudi Arabia. So we made the history. It was challenging, but we did it in somehow. We showed the historical Ad-Daraya place where basically Saudi Arabia born. So we shot there. Yeah, it was so much fun. जिस तरह का इसमें स्टोरी दिखाया जा रहा है काफी यूनिक है, सो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो किसका आइडिया था, किस तरह से आप लोग सोचे कि इसमें इस तरह की स्टोरी होगी? Actually, the idea was Faiz Chaudhary. He's the director of the video. I shared with him the track, and he said, "Yeah, this is really something like next level. And we shouldn't shoot in an ordinary music video thing, because I feel कि इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं." It was his favorite song also, Ramta Jogi and Jab Dil Mile, because it's a fusion. So he really liked that part where I say एक प्रेम दा प्याला पियाया, एक पल में सदियां जी आया. तो सदियां जी आया was his idea that it should be like एक जादूगर है जो एक जादू प्ले करता है, एंड वो एक पल में सारी सदियां जी आता है. The place where I freeze everybody, and then मैं सिर्फ एक्ट्रेस को एक्टिव करता हूँ, and then I'll take her सदियां जी के वापस आके इसको फ्रीज करके, and then I just leave. So that was the idea. It was very different, something really new, and वही लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. The concept, the video, a lot of people are saying कि एक फिल्म की तरह है, एक मूवी की तरह है. So it was very challenging for us, but alhamdulillah we achieved it.
कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सॉन्ग को रिक्रिएट करना इजी होता है और जो ओरिजिनल सॉन्ग बनाना होता है वो हार्ड होता है, उस पे आपकी क्या प्रक्रिया होगी? कुछ भी इजी नहीं होता. आई बिलीव कि if a person also doing a selfie TikTok video, it also required a lot of effort. ऐसा नहीं है. यूजुअली हम बहुत जल्दी चीज़ों को जज करना शुरू कर देते हैं. वी जस्ट उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी चीज़ें होती है, कितनी डिटेल, कितना कितना डिटेल वर्क होता है, ये वही जानता है जो कर रहा होता है. आई बिलीव पर्सनली कि अगर कोई भी चीज़ है, किसी भी, कुछ भी आसान नहीं होता. एवरीथिंग इज इट रिक्वायर्ड द एफर्ट. स्क्रैच से एक गाना अगर कुछ आप करते हैं तो यस, यू नीड अ मेलोडी, यू नीड लिरिक्स, यू नीड अरेंजमेंट्स. बट हर सिंगर या हर म्यूजिक कंपोजर एक लिरिसिस्ट नहीं होता. लिरिसिस्ट जैसे इस गाने के लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे हैं, तो ही डिड हिज जॉब. अब अगर कोई हम रिक्रिएट नहीं करते, कोई नया गाना बनाते, तब भी कोई और करता, तो हमारा भी वही एफर्ट लगता जो अभी लगा है. So it's the same thing. It's not like recreate करना is easy job. ओके, सो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, किस तरह से उसका हिसाब, मतलब किस तरह से आप सावधानी बरते या फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि We shot this before COVID. Before COVID we shot that, and release होने में इसलिए इतना वक्त लगा क्योंकि the situation was different, so we just postponed the release. We shot this before COVID. तो आपके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं और कुछ रिक्रिएशन बहुत ऑडियंस पसंद की है और सुपर हिट हुए, और अभी जो आपने जब दिल मिले इसका भी 2.2 मिलियन व्यूज हुए, तो क्या कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है जो आपके दिल के करीब हुआ? कॉम्प्लीमेंट मिला, सॉरी, ऐसा क्या? क्या कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिले हैं इस सॉन्ग को लेकर जो आपके दिल के करीब? दिल के करीब तो सारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन दिस वन जो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है कि पीपल आर लाइकिंग माय डांस. हेलो, नेटवर्क? Everyone is loving it. So ये थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा वो है, डिफरेंट है. तो आप सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट या फिर सबसे ज्यादा मजा किस? वन सेकेंड। हाय प्रीति. या Yeah. या आर यू लिसनिंग? Yeah. तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, आपको सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट आता है और सबसे ज्यादा किस चीज को आप इंजॉय करते हैं? यार एंजॉय तो मैं सब चीजों को करता हूँ, इसलिए सब करता हूँ. बिकॉज हर चीज जिसमें भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, जिसमें भी कुछ क्रिएट करने का मौका मिले, आई थिंक हर आर्टिस्ट को उसमें अच्छा ही उसको अच्छा लगता है कुछ भी क्रिएट करना. चाहे वह, हाँ, ये इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग दैट मैं आई एम नॉट अ कैमरा शाय, आई कैन एक्ट, थोड़ा बहुत मैं म्यूजिक भी कर लेता हूँ, गा भी लेता हूँ. तो आई थिंक मुझे जब, हाँ, उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होता है अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे दोबारा करना चाहिए. तो हर चीज को मैं एंजॉय करता हूँ. अब जैसे डांस को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आई विल डू दिल से दोबारा. या जब दिल मिले, दो लाइन आपसे सुनना चाहूंगी, अगर आप गुनगुना सके। कौन सा जब दिल मिले। कौन सा बात को अच्छा लगता है? हेलो, या कैन यू हियर मी? या मेरी आवाज क्लियर है आपको? ओके, I'll sing the first line, which is the starting line of it. इस इश्क में सी आग लगे हो, इस इश्क में सी आग लगे, दिल दरिया में तूफान उठे, धरती डोले आकाश हिले हो.
ये इश्क इबादत भी है जी, ये इश्क कयामत भी है जी, कोई तौबा करे कोई सजदा करे हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। तो सर आपसे जानना चाहूंगी आपकी ईद कैसी गई? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बिकॉज मैं जहाँ पे हूँ द सिचुएशन इज इन इन कंट्रोल, तो घर वालों के साथ मनाई, एंड प्लस जब दिल मिले इज आउट ऑन ईद, दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग जो ईद पे वी रिलीज्ड इट, एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू टिप्स and Mr. Kumar Turani ji. So we really enjoying the release and the feedback and the are loving it. So yeah, it's very great. हर एक फेस्टिवल हमारे दिल के करीब होता है और हम लोग पसंद करते हैं। सो ईद आपको कितना पसंद आता है, या फिर ईद की ऐसी क्या खासियत आपको पसंद आती है, आप क्या बताना चाहेंगे? खासियत ये होती है कि अपनों से मिलना, अच्छा वक्त गुजारना। आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज रियली डिफरेंट, वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट वे। हमेशा ईद पे मिलना जुलना होता है, वक्त गुजारते हैं अपनों के साथ हम लोग, तो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में काफी स्केड्यूल बिजी चल रहा होता है, तो हम लोगों को वक्त नहीं मिलता। तो ईद एक ऐसा त्यौहार होता है, बल्कि कोई भी ऐसा त्यौहार, जब भी कोई त्यौहार आता है तो मेरे ख्याल से फैमिलीज मिलती हैं, फ्रेंड्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ईद, आई बिलीव। ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ आने वाले हैं आपके? बहुत कुछ आने वाला है, बट आई कांट डिस्क्लोज दैट, but I will share with you guys soon. कि क्या, of course, I have to share with my team with tips. So we are planning to shoot something really good, some peppy numbers, some dance numbers. So we'll see a lot of romantic songs. So all of them, they are in pipeline. ओके, तो क्या उसमें आपकी भी झलक देखने को मिलने वाली है? Of course, of course, of course. कुछ इतना प्यार मुझसे मेरे फॉलोअर्स या मुझे चाहने वाले करते हैं, कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो कहेंगे कि आप क्यों नहीं है। राइट, राइट, राइट। तो लास्टली अपने फॉलोअर्स, अपने मुझे फैंस जाना को क्या पड़ेगा। बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग बकेट ऑफ लव टू दिस जब दिल मिले, एंड इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह सुनते जाइए, और भी अगले गाने आएंगे उनको भी इसी तरह प्यार दीजिएगा, एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, लवली।